आम बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हेल्थ सेक्टर को लेकर भी कई ऐलान किए। आम बजट में हेल्थ सेक्टर को क्या मिला, देखिए ये खास रिपोर्ट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में हेल्थ सेक्टर के लिए कई घोषणाएं की हैं। उन्होंने हेल्थ पर फोकस करते हुए नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम के लिए ओपन प्लेटफॉर्म शुरू करने की बात कही, यानी हेल्थ इकोसिस्टम के लिए सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म लाएगी। An open platform for the national digital health ecosystem will be rolled out. It will consist of digital registries of health providers and health facilities, unique health identity, consent framework and universal access to health facilities. जिससे लोगों को ऑनलाइन ही हेल्थ प्रोवाइडर्स की जानकारी मिलेगी। साथ ही ये भी पता लगा सकेगा कि सरकार आम लोगों को कौन-कौन सी स्वास्थ्य सेवाएं दे रही हैं। इसमें हर नागरिक की सेहत का लेखा जोखा भी होगा। बजट पेश करने के दौरान सीतारमण ने कहा कि कोविड से लोगों की मेंटल हेल्थ पर असर हुआ है। इसके लिए नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा, जिसमें 23 ऐसे संस्थानों को साथ लिया जाएगा जो मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के जरिए लोग एक्सपर्ट से मेंटल डिसऑर्डर के इलाज को लेकर बात कर सकेंगे। Pandemic has accentuated mental health problems in people of all ages. To better the access to quality mental health counseling and care services, a national tele-mental health program will be launched. This will include a network of 23 tele-mental health centers of excellence, with NIMHANS being the nodal center, and International Institute of Information Technology, Bangalore, IIIT Bangalore, providing technology support. लिहाजा केंद्र सरकार के नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम से लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में एजुकेशन सेक्टर को भी कई सौगातें दी। एजुकेशन सेक्टर को आम बजट में क्या मिला है, देखिए ये रिपोर्ट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के दौरान कहा कि कोविड की वजह से स्कूल बंद होने के कारण खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे काफी प्रभावित हुए हैं, जिसे देखते हुए पीएम ई विद्या के तहत पहले से चल रही 1 क्लास 1 टीवी चैनल योजना का विस्तार किया गया है। इसे बढ़ाकर 200 टीवी चैनल किए जा रहे हैं, जिससे स्टूडेंट सप्लीमेंट्री एजुकेशन भी हासिल कर सकें। Due to the pandemic-induced closure of schools, our children, particularly in the rural areas and those from scheduled castes and scheduled tribes and other weaker sections, have lost almost 2 years of formal education. Mostly, these are children in government schools. We recognize the need to impart supplementary teaching and to build a resilient mechanism for education delivery. For this purpose, 1 class, 1 TV channel program of PM E-Vidya will be expanded from 12 to 200 TV channels. This will enable all states to provide supplementary education in regional languages for classes 1 to 12. इन चैनल्स में स्थानीय भाषा में शिक्षा देने का भी ध्यान रखा गया है। इस फैसले से सभी राज्यों के स्टूडेंट्स को उनकी स्थानीय भाषा में शिक्षा हासिल करने में मदद मिलेगी। इसके लिए शिक्षकों को बेहतर डिजिटल टूल मुहैया कराए जाएंगे, जिससे वे स्टूडेंट्स को बेहतर तरीके से पढ़ाई करा सकें। इसके अलावा सीतारमण ने बजट में विश्व स्तरीय डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने का भी ऐलान किया। हाई क्वालिटी e-content in all spoken languages will be developed for delivery via internet, mobile phones, TV and through radio and digital teachers. A competitive mechanism for development of quality e-content by the teachers will be set up to empower and equip them with digital tools of teaching and facilitate better learning outcomes. A digital university will be established to provide access to students across the country for world-class quality universal education with personalized learning experience at their doorsteps. This will be made available in different Indian languages and ICT formats. The university will be
built on a networked hub and spoke model, with the hub building cutting-edge ICT expertise. The best public universities and institutions in the country will collaborate as a network of hub and spoke. कृषि विश्वविद्यालयों के विस्तार के साथ राज्यों को कृषि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में बदलाव के लिए प्रोत्साहित करने की बात भी कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कौशल विकास के लिए ई पोर्टल बनाया जाएगा। युवा शक्ति को स्किल इंडिया मिशन के जरिए स्किल्ड वर्कर बनाने पर भी सरकारी योजनाओं के तहत काम किया जाएगा। 2 लाख आंगनबाड़ियों का विस्तार होगा तो आजीविका के साधन बढ़ाए जाने के लिए सरकारी प्रोजेक्ट की संख्या बढ़ाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।